नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सो जब आप एक वॉरशिप को कमांड करते हो, व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली हैपनिंग ऑन द वॉरशिप? सो वॉरशिप में लाइक मैंने दो वॉरशिप कमांड किए. एक वॉज लैंडिंग शिप टैंक. हुँ, Though that is used for amphibious operation, you actually land on the beach ओके, and then open the bow doors and the tank roll out and trucks roll out and the troops roll out. So that is meant for basically amphibious warfare. हुँ, It is also meant for HADR missions. It's an Okay. ideal platform for HADR missions. हुँ, Tsunami ke time I was commanding that kind of ship, INS Guldar, and we did tremendous amount of good work of HADR and relief materials we provided from one island to the other. And काफ़ी हमने हमारे शिप ने काम किया. मैंने नहीं और शिप ने भी उसमें बहुत अच्छा काम किया था. Second ship which I commanded was INS Gomti. हुँ, It was a guided missile frigate. So it has got a frigate which has got anti-submarine capability, anti-air capability. I had two helicopters. ओके, And both the helicopters could fly a long distance with ESM support mechanism. They could fire torpedoes. And then so that is the what you call combat potential my ship had. हुँ, And I could sail for about 6 days continuously, then refuel and again sail further. So that was my reach. And शिप मेरे शिप में आप ये जानना चाहते हैं ना कि शिप की दिनचर्या क्या होती हाँ, है. सो शिप इज गॉट मेरे शिप में खासकर अभी तो खैर माई शिप वॉज रीजनेबली बिग बट देर आर बिगर शिप्स नाउ. So like there are aircraft carrier which is biggest, then there are tankers, then there are LPD landing platform deck and landing platform helicopter decks and all. Those are basically for amphibious warfare. Then there are destroyers. आजकल cruisers नहीं होते. There are destroyers. Then there are frigates. Then there are missile corvettes. Then there are small civil defense boats and all. So category of size and all these things, and also the combat potential. राइट, So destroyers by and large have got the best combat potential. Aircraft carrier का जो combat potential is emanates from the aircraft which are on the aircraft carrier. ठीक है ना? राइट, And of course it is a center of gravity for any fleet operation. या, जो समुद्री बेड़ा होता है उसको बोलते हैं फ्लीट. हुँ, और सेंटर में होगा एयरक्राफ्ट कैरियर, मदरशिप जैसे, मदरशिप. और वहाँ से फिर एयरक्राफ्ट फ्लाई करके और द पावर फ्रॉम द एयरक्राफ्ट कैरियर गोज आउट. हुँ, इट डिफेंड्स द फ्लीट एट द सेम टाइम. इट कैन ऑल्सो बी डिप्लॉयड फॉर ऑफेंसिव ऑपरेशन. राइट, ये उसका मुद्दा है. एंड जो मेरा जहाज था, इट वॉज a smaller ship about 125 meters in length. I was carrying 4 missiles. Each missile has a surface to surface missile range of about 120 kilometers. And I had what you call SAMs, short range anti-missile defense, which I had about 48 missiles. It was missiles were basically Israeli missiles. ओके, So Barak missiles. And then I had helicopters. Then I had torpedoes for anti-submarine warfare operations. So दिनचर्या ऐसी होती है कि when you are actually alongside, यानी कि अगर हार्बर में होते हैं तो उसकी रूटीन अलग होती है. 8:30 everybody comes on board the ship. Ship is divided into 3 watch system: red, white, and blue. Basically shift system. So 1/3 of the ship's company is always on duty. There's a duty officer on the ship. Everybody comes to the ship in the morning and everyone works till about 3, 4, 5 in the evening. 3:30 में लोग चले जाते हैं, लेकिन बाकी लोग काम करते रहते हैं जिनको करना है. Commanding officer will stay, and other officer will also stay because there are a lot of addendum work also you have to Right. do. थोड़ी फाइल पुशिंग भी होती है. And then so this in general happens when you are actually in a harbor, and of course you have to also have sentries manning the ship. Then you have to give people for communal duties to the command headquarters. अभी वहाँ पे आपको गेम्स ऑर्गेनाइज करने हैं, वहाँ पे आपको वेलफेयर एक्टिविटी देखनी है, वहाँ पे आपको एक्सरसाइजेस करनी है, इंडिविजुअल को अपना इंडिविजुअल प्रोफेशनल कोर्सेज अटेंड करने हैं, लोगों को छुट्टी जाना है, वो सब होता है व्हेन द शिप इज अलोंगसाइड इन हार्बर. और शिप्स आर नॉट मेंट टू बी एक्चुअली टाइड अलोंगसाइड. ओके, शिप्स आर मेंट टू बी सेलिंग. ये कहावत है नेवी में और सही कहावत भी है. सो ऑन दी एवरेज 15-20 दिन एक महीने में तो जहाज पानी में रहता है बाहर सेलिंग. एंड सेलिंग में क्या करता है? एंटी पायरेसी ऑपरेशन, राइट, पेट्रोलिंग ऑफ आवर ऑयल रिग्स, पेट्रोलिंग ऑफ कोस्टल एरियाज. Then वो मैंने कहा constabulary roles and diplomatic roles. You go to the other countries and do joint exercises, passage exercises. उनके जहाज आते हैं, हमारे जहाज आते हैं, थोड़े एक्सरसाइज छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हैं. और उसके बाद the degree of difficulty of the exercise can be increased based on the amount of mutual understanding you have. अभी कोई ऐसा कंट्री जैसे इंडोनेशिया है या फॉर एग्जांपल श्रीलंका है, इनके छोटे छोटे जहाज होते हैं और हमारे बड़े जहाज होते हैं, तो उनकी फिर एक्सरसाइज की फिर क्षमता थोड़ी कम हो जाती है. राइट, बट इफ यू डू विद सिंगापुर इज गॉट बिग शिप्स एंड वो सबके सब अंग्रेजी समझते हैं, तो इट इज वेरी इजियर फॉर कमांड एंड कंट्रोल ऑल्सो. तो ऐसे करके एक्सरसाइज करते रहते हैं. तो देन वी हैव एक्सचेंज ऑफ आवर ट्रेनिंग स्टाफ एंड ऑल. सो म्यूचुअल कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन
basically building bridges of friendship. That is what I told us about this diplomatic role. So वो भी होता है. Then you are doing wartime exercises. You're flying. You create a scenario where there is a enemy submarine lurking around in the fleet to destroy something, and now you take evasive measures. How do you take evasive measures? You fire torpedoes. Of course, you fire dummy torpedoes only because torpedoes are very expensive. Then you do flying a helicopter operation to drop depth charge. Then helicopter which I had used to have a dunking sonar, sonar which can be lowered in water, and then it emits just to find out कि कोई submarine तो नीचे लर्क नहीं कर रही है. So वो सब activity होती हैं. Then there is also we exercise की simulated exercise की किसी enemy ship ने एक surface to surface missile आपकी तरफ fire किया और आप उसका against उसके कैसे defense करेंगे. So you have your SAMs, surface to air missiles. You can fire that, or you can fire close-in weapon systems and all. You can fire that. You also practice real time कि अगर कोई terrorist ship आ गया और आपको उसको असॉल्ट करना तो कैसे करोगे, अपने बोर्डिंग पार्टी कैसे भेजोगे शिप, और अगर कोई अपना हेलीकॉप्टर आपका क्रैश हो गया सामने तो उसकी मदद कैसे करोगे, अगर HDR मिशन करना है तो कैसे करोगे. ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर एक्सरसाइज ऑन इट बिकॉज क्या है कि ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं एंड दीज आर ऑल हाई रिस्क एक्टिविटीज़. और अगर हमने रिहर्सल नहीं की और रोज़ अगर हमने इसका वो रिविजन नहीं किया सो हादसा हो सकता है. ओके. And when I say hadsa in the Navy or in the armed forces, particularly in the Navy, agar hadsa means it is death or destruction. Okay. And to avoid that, we have to keep on doing exercising, repeatedly doing the same exercise. It should become like a muscle memory. And the whole machinery is refined. Right. The people who are involved in जो activity में involved हैं, they should know exactly करना क्या है उनको. Okay. Safety precaution क्या लेने हैं, एंड उसके बाद एक्टिविटी कैसे करनी है. यू शुड नो एवरीथिंग. उसको रिफाइन करते रहते हैं. एंड द टेक्नोलॉजी चेंजेस, न्यू वेपन सिस्टम कम्स इन, न्यू सेंसर कम्स इन, नया सोनार आ गया, नया आपका ESM सिस्टम आ गया, आपके नए जैमर्स आ गए. अभी उसका डिप्लॉयमेंट कैसे करना है उसको भी सीखना है. एक तो आप स्कूल में जो शोर में जो ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे सीखोगे, उसके बाद फिर जब शिप में लगेंगे तो फिर आपको शिप में उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना है. तो वो सब चीज़ें होती रहती हैं. राइट. But then, what's the longest time जो आप land से दूर रहे हो? I've stayed in 145 days. Okay. Ship is practically can stay if you can get tankers. जैसे कि there's something called as OTR, operational turnaround. अभी जैसे आज की जैसे हम बात कर रहे हैं और मैंने कहा कि 10-12 भारतीय नौसेना के पोत जो हैं वो पूरे इंडियन ओशन में छाए हुए हैं, यहाँ वहाँ गए हुए हैं. कोई मडागास्कर के सामने होगा, कोई अपना नॉर्थ अरेबियन सी में होगा, कोई क्लोज टू गल्फ ऑफ एडन है, पक्का है वहाँ पे एंटी पायरेसी ऑपरेशन, कोई पर्शियन गल्फ के बाहर है ना. जो गल्फ ऑफ एडन के में जो पेट्रोलिंग कर रहा है मैं उसकी बात करता हूँ. अब वो यहाँ से जाने के 3-4 दिन वहाँ पे वो 8-10 दिन गश्त लगाएगा. अब उसको फ्यूल चाहिए तो यहाँ तक टैंकर भेजो, वो बड़ा महंगा सौदा हो जाता है. सो व्हाट यू डू इज़ दैट जो नियर बाय कंट्रीज़ हैं उनसे साथ अच्छे डिप्लोमेटिक संबंध रखो. एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल. One is through the Ministry of External Affairs and second is through the diplomatic role of the Indian Navy. Bridges of friendship, build bridges of friendship. तो वहाँ जाके and you have an agreement with them. Like that we have agreement with 22 countries in the Indian Ocean region where we can go and do a quick turnaround. It's called operational turnaround. You go there, फ्यूल करेंगे आपको, अब पैसे आपने पे करने हैं लेकिन दे विल गिव यू बर्थिंग फैसिलिटीज. आप फ्यूल करो और आप राशन प्रोविजन फ्रेश प्रोविजन लो. उसके बाद जिनको छुट्टी आना, जो नए छुट्टी से वापस आए उनको लो. And then you sail again in the petrol area and keep on doing that patrolling. Okay. So like that. So that's called sustaining your legs. Sustaining your long legs. Now ये चाइना के लिए दिक्कत वाली बात है क्योंकि उनको ऑल द वे वहाँ से आना है. True, हाँ. और उसको फिर OTR के ऐसे जैसे हमारे तो 22 कंट्री से सौदा है, मीन्स सलाह मशवरा करने के बाद हमने एग्रीमेंट साइन किया है. चाइना का ऐसा कोई हिसाब किताब है नहीं. लॉट ऑफ कंट्रीज डू नॉट वांट टू पार्टेक विद दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट विद चाइना. सो पर फोर्स वो मोन्टोटा में रहेगा, ग्वादार में रहेगा, जिबूती में रहेगा, सितवे में रहेगा. दैट इज द थिंग. इट बिकम्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. राइट. ओके. बट देन आई डोंट नो कि ओशन रीजन्स में आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो एक पीस ऑफ लेट्स से स्पेसिफिक एक कोई रीजन है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कहते हैं उसे? I don't know if there is any term. See, there is actually I touched upon this UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Sea. तो ये एक ऐसी लॉज हैं जो कि बाय एंड लार्ज काफ़ी कंट्रीज फॉलो करती हैं. उसमें डेफिनेशन दे रखा है. ओके. व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर्स. आपका जो कंट्री का कोस्ट है उससे 12 नॉटिकल माइल यानी कि 21-22 किलोमीटर तक वो उसको कहते हैं टेरिटोरियल वाटर्स. ओके. और वहाँ पे आपका पूरा जुरिडिक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे कि जो लैंड में करते हैं पुलिसिंग ये वो सब कुछ वहाँ तक होता है. सेम वहीं पे. कोई भी अगर शिप कहीं से घुस जाए उसके अंदर ही इज सब्जेक्ट टू the law of the country, law of India's, like vice versa other countries also.
उसके 24 उसके और उससे फर्दर 12 किलोमीटर उसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। उसमें क्या होता है, हमारी फिजिकल पॉलिसीज एंड क्वारंटाइन पॉलिसीज एंड ये हमारे व्हाट यू कॉल कस्टम एंड ट्रेड वाले जो पॉलिसी होते हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। सो एनी शिप इज ट्रैवलिंग थ्रू दैट प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग अस विल बी सब्जेक्ट टू दिस। ओके। और कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स आगे तक, यानी कि करीबन 350 किलोमीटर्स तक, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और वो जो एरिया पूरा है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टोर ऑफ योर कोस्ट लाइन, और वो ऐसे कॉन्टोर आप मार्क कर दो, वर्चुअल कॉन्टोर मार्क कर दो, दैट इज योर एरिया। ओके। वहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हो, वहाँ पे आप ऑल ट्रेड एक्टिविटी कर सकते हो, कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो, नोड्यूल माइनिंग कर सकते हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, वहाँ से निकाल सकते हो, आप ही निकाल सकते हो, होस्ट कंट्री, बाकी कोई कर और नहीं कोई सकता। नहीं निकाल सकता। So these are the divisions which are given the UNCLOS and people follow this. Okay.